Dear students, this is my 10th lecture on the mechanical properties of fluids. Today, the main points of my lecture are Stokes law and terminal velocity. So first we discuss about the Stokes law. Now what is the Stokes law? In 1845, Sir George Stokes stated the law which gives the viscous force acting on a spherical object falling through the viscous medium. मतलब कोई spherical object किसी viscous medium से होते हुए गिर रहा है वर्टिकल. यहाँ पे हमने एक viscous medium लिया और इस viscous medium में एक solid object नीचे की तरफ fall हो रहा है. Because this is a viscous medium, therefore viscous force will be experienced by this solid object. Now the law states that this law, Stokes law states that the viscous force Fv, acting on a small sphere falling through a viscous medium is directly proportional to radius of the sphere. Directly proportional to radius of the sphere. ये spherical object है, इसका जो radius होगा small r. तो viscous force is directly proportional to radius of the sphere and also directly proportional to its velocity. जिस velocity से ये fall हो रहा है, directly proportional to velocity through the fluid and the coefficient of viscosity. इस viscous fluid का जो coefficient of viscosity है that is eta. तो now here consider a solid object, a spherical object which is falling through a viscous medium and r is the radius of that sphere. V is the velocity through which the object is falling through the viscous medium and eta is the coefficient of viscosity of this fluid through which the object is falling. So now this law states that is the Stokes law states that the viscous force Fv acting on a small sphere falling through a viscous medium is directly proportional to radius of the sphere, its velocity through which it is falling, that is v, and coefficient of viscosity eta of the fluid. So now you will get this statement: F is directly proportional to r, v and eta. The empirically obtained constant of proportionality Fv को जब रिप्लेस करेंगे इक्वल साइन से तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा एंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज obtained empirically 6 pi. What do you mean by empirically? Empirically means based on testing or experience or experimentally determined or observational value. तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू है 6 पाई और ये एक्सपेरिमेंटली या ऑब्जर्व्ड वैल्यू है जिसको एम्पेरिकली डिटरमाइंड वैल्यू बोल सकते हैं. तो देयरफॉर एफ वी इज इक्वल टू 6 पाई एटा आर वी. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1. This is the expression for the viscous force acting on a spherical object moving through a viscous medium. The above formula can be derived using the dimensional analysis. तो यहाँ पे viscous force का डायरेक्शन क्या होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और viscous force जो काम करेगा स्मॉल ऑब्जेक्ट जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड काम करेगा. तो viscous force is acting upward. Now this is a question, numerical question based on the Stokes law. A steel ball
with radius 0.3 mm. रेडियस ऑफ स्टील बॉल दिया हुआ है 0.3 mm. इज फॉलिंग थ्रू ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एट ए टाइम t. यह स्टील बॉल मीडियम से 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गिर रहा है थ्रू ए ट्यूब फिल्ड विथ ग्लिसरीन. यहाँ पे मीडियम है वह ग्लिसरीन है, मतलब फ्लूइड ग्लिसरीन है. हैविंग द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब फ्लूइड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 0.833 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. डिटरमाइन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टील बॉल एट दैट टाइम. तो यहाँ पे गिवन क्वांटिटीज़ में क्या क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ स्टील बॉल दिया हुआ है 0.3 mm. वेलोसिटी दिया हुआ है, फ्लूइड से जिस वेलोसिटी से स्टील बॉल गिर रहा है वह वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड. और जो फ्लूइड है वह ग्लिसरीन है और उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 0.833 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. हमें फाइंड करना है विस्कस फोर्स क्या होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम गिवन क्वांटिटी लिखेंगे. व्हाट आर गिवन टू यू? नाउ इन दिस क्वेश्चन the given quantities are radius of steel ball is given r is equal to 0.3 millimeter. और क्या दिया हुआ है? velocity through which the steel ball is falling through the glycerine is 2 meter per second. और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है ग्लिसरीन का, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल है एटा. तो एटा इज इक्वल टू 0.833 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. ये दिया हुआ है. हमें फाइंड करना है विस्कस फोर्स एफ कितना होगा. तो सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज़ को सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे. रेडियस मिलीमीटर में दिया हुआ है और एसआई यूनिट लेंथ का होता है मीटर. तो देयरफॉर दिस विल बी 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर. अब ये एसआई यूनिट में आ गया. और वेलोसिटी ऑलरेडी एसआई यूनिट में दिया हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी एसआई यूनिट में दिया गया है. यहाँ पे स्टोक्स लॉ का यूज करेंगे और फार्मूला होगा, यू नो दैट एफ इज इक्वल टू 6 पाई इंटू एटा इंटू आर इंटू वी. अब इस फार्मूले में हम गिवन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो 6 और पाई की वैल्यू होती है 3.142 या 22/7 भी लिख सकते हैं. इंटू एटा का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज़ 0.833 और आर की वैल्यू यहाँ से लेंगे, दिया हुआ है दैट इज़ 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3. आर का वैल्यू मिल गया और वेलोसिटी ऑलरेडी दिया हुआ है इंटू 2. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगा. दिस इज इक्वल टू 9.422 इंटू 10 टू द पावर -3. सभी क्वांटिटीज़ हमने एसआई यूनिट में सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एसआई यूनिट में मिलेगा. और फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन. तो देयरफॉर द विस्कस फोर्स एक्टिंग विल बी 9.422 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन. Now next point is the terminal velocity. Now consider a spherical object which is falling through a viscous medium through this tube. एक spherical object है जो इस फ्लूइड से फॉल हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है इस फ्लूइड में, फ्लूइड के अंदर. तो now during falling of this spherical object, the forces
experienced by this object will be viscous force. इसके ऊपर एक viscous force काम करेगा Fv, और इस viscous force का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, and its magnitude goes on increasing with the increase in the velocity. मतलब Fv की जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी के साथ इंक्रीज करेगा, और सेकेंड फोर्स जो काम करेगा स्फीयर के ऊपर वो दैट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज डाउनवर्ड, एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग ड्यू टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज mg. तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड, और जो तीसरा फोर्स काम करेगा दैट इज ए बुओयंट फोर्स, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड अप थ्रस्ट Fu. यह फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, और ये फोर्स क्यों काम करेगा? इसलिए कि जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है यह जब फॉल होगा तो फ्लूइड को रिप्लेस करेगा, और जितने मास को रिप्लेस करेगा, मतलब जितने वेट को रिप्लेस करेगा, वही फोर्स अपवर्ड काम करेगा. यह जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होगा, मतलब नीचे की तरफ गिरेगा, तो यह अपने वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड को रिप्लेस करेगा, और उस वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड का जो वेट होगा वही वेट अपथ्रस्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा. तो नाउ हियर द नेट डाउनवर्ड फोर्स इज गिवन बाय, नेट डाउनवर्ड फोर्स जो होगा F, और वह फोर्स कितना होगा? Fg फोर्स डाउनवर्ड काम कर रहा है, दैट इज Fg, ये डाउनवर्ड काम कर रहा है, और अपवर्ड जो फोर्स काम कर रहा है वो है Fv और Fu. तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स होगा Fv प्लस Fu. Fv है विस्कस फोर्स जो अपवर्ड काम कर रहा है, और Fu है अपथ्रस्ट, जिसको बुओयंट फोर्स भी कहेंगे. तो नाउ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल गोज ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे बॉल नीचे जाएगा बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और जैसे जैसे बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी विस्कस फोर्स इंक्रीज करेगा. तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब कि Fg जो डाउनवर्ड काम कर रहा है उतना ही यह अपवर्ड फोर्स काम करेगा, एंड इन दैट सिचुएशन यू कैन राइट व्हेन Fg विल बी इक्वल टू Fv प्लस Fu. उस वक्त क्या होगा? बॉल के ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स काम नहीं करेगा, और बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी. तो देयरफॉर द डाउनवर्ड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट downward velocity is called terminal velocity. This is called terminal velocity. So now try to understand again what is the terminal velocity. हमने एक स्फेरिकल बॉल लिया, बॉल को फ्लूइड के अंदर छोड़ दिया, यह बॉल फ्लूइड में नीचे की तरफ गिरेगा, तो उसमें तीन तरह के फोर्सेस काम करेंगे. एक तो होगा इस बॉल का वेट, दैट इज mg, दिस इज एक्टिंग ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस फोर्स का डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड. और दूसरा फोर्स जो काम करेगा अपथ्रस्ट, यह फोर्स क्यों काम करेगा? ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ये अपने वॉल्यूम के बराबर फ्लूइड को रिप्लेस करेगा, और उस फ्लूइड का जो वेट होगा वह उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसको हम बोलेंगे अपथ्रस्ट. और एक फोर्स काम करेगा विस्कस फोर्स फ्लूइड के तरफ से. तो अपवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस हो गए Fu और Fv, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स हो गया Fg. तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा F वो Fg माइनस Fu होगा, Fg माइनस Fu प्लस Fg माइनस Fv प्लस Fu. क्यों लिखा है? इसलिए कि बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो Fg ज़्यादा होगा. तो नाउ विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी Fv इंक्रीज करेगा, Fv
इंक्रीज करेगा और एक ऐसा स्टेज आएगा जब एफ वी प्लस एफ यू के बराबर हो जाएगा. मीन्स मैथमेटिकली यू कैन राइट एफ जी इज इक्वल टू एफ वी प्लस एफ यू, एंड आफ्टर दैट the ball attains a constant velocity in downward direction, and this constant downward velocity is called terminal velocity. Now consider here the radius of this spherical object is r, mass of this spherical object is m, and density of the spherical object is rho, and coefficient of viscosity of the fluid is eta. ये जो fluid है इसका coefficient of viscosity eta है, एंड द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, यहाँ जो फ्लूइड हमने लिया है उसकी डेंसिटी है सिग्मा. नाउ देयरफॉर टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा? टोटल डाउनवर्ड फोर्स will be equal to weight of total downward force is equal to you know that weight mg, and this downward force will be equal to the upthrust Fu plus विस्कस फोर्स एफ वी. ये डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द टोटल अपवर्ड फोर्स. तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू एफ वी प्लस एफ यू, और उसी सिचुएशन में जो वेलोसिटी मिलेगा वो टर्मिनल वेलोसिटी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड दैट विल बी ए कांस्टेंट वेलोसिटी. तो इन मैथमेटिकल फॉर्म यू कैन राइट हियर, you can write here इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा? वेट होगा इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया, और डेंसिटी है रो, तो इंटू रो. अब इसका ये मास हो गया इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, तो वेट कितना होगा इंटू जी. अब ये वेट हो गया, ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, इज इक्वल टू एफ वी प्लस एफ यू. तो अभी हम एफ वी फाइंड करेंगे. एफ वी इज द विस्कस फोर्स, एंड अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ दिस इज इक्वल टू 6 पाई एटा R V, where eta is the coefficient of viscosity, R is the radius of the ball, and V is the velocity of the ball, plus Fu upward thrust, that is called buoyant force. अब buoyant force कितना होगा? यह बॉल जितना फ्लूइड रिप्लेस करेगा उसका जो वेट होगा वही buoyant force होगा. तो इस बॉल का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब. इतने वॉल्यूम के फ्लूइड को रिप्लेस करेगा, और उस फ्लूइड की डेंसिटी है सिग्मा, तो देयरफॉर इनटू सिग्मा. अब उस फ्लूइड का मास हो गया, उस फ्लूइड का वेट कितना होगा इनटू जी. अब ये उस फ्लूइड का वेट हो गया. तो नाउ एक्सप्रेशन यू विल गेट 4/3 पाई आर क्यूब रो इनटू जी. So therefore taking 6 pi eta RV in left hand side, because here V is the terminal velocity and it is to be determined. So therefore you can write 6 pi eta
RV is equal to 4/3 पाई R क्यूब रो इंटू जी, और इस टर्म को हम लेफ्ट साइड चेंज करेंगे, तो देयरफॉर विल बी 4/3 पाई R क्यूब सिग्मा इंटू जी। तो नाउ हियर व्हाट इज कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है 4/3, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और पाई इसमें भी है और इस टर्म में भी है, और R क्यूब भी कॉमन है, तो देयरफॉर इंटू R क्यूब, और G भी दोनों में कॉमन है, देयरफॉर G विल बी आल्सो कॉमन, तो देयरफॉर इंटू रो माइनस सिग्मा। तो ये वैल्यू हो गया 6 पाई एटा RV का। Therefore V is equal to यहाँ से V हम लेंगे, तो V will be equal to 4/3 पाई R क्यूब G इंटू रो माइनस सिग्मा, और यहाँ से क्या हमने रिप्लेस किया राइट हैंड साइड में 6 पाई एटा R, तो डिवाइडेड बाय 6 पाई एटा R, तो देयरफॉर द टर्मिनल वेलोसिटी V इज इक्वल टू 2 से कट करेंगे 2 टाइम्स, और ये 3, तो देयरफॉर 2/3 इंटू 3 9, 2/9, और ये हो जाएगा R से एक R कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R स्क्वायर इंटू जी, R स्क्वायर इंटू जी, और ब्रैकेट में आएगा रो माइनस सिग्मा, और एटा रह गया, तो डिवाइडेड बाय एटा। Now this is equation number 1, and this is the expression for the terminal velocity of the sphere. So from equation 1 we can also write eta is equal to 2/9 into R square rho minus sigma upon V. This is equation number 2, and this is the expression for the coefficient of viscosity. Now there is a numerical question. A spherical drop of oil falling at a constant speed of 4 centimeter per second. ये जो स्पीड है कांस्टेंट स्पीड है, इसको हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। इन स्टडी एयर, जो विस्कस मीडियम है वो एयर है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, मतलब हमको रेडियस ऑफ द ड्रॉप कैलकुलेट करना है। द डेंसिटी ऑफ ऑयल, मतलब जो बॉल है जो गिर रहा है उसके मटेरियल, उसका मटेरियल है आयल और उसकी डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो देयरफॉर रो, दिस इज रो। द डेंसिटी ऑफ एयर, विस्कस मीडियम की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये है सिग्मा। एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ पॉइज। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब एटा दिया हुआ है, और जी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दिस क्वेश्चन ऑल द गिवन क्वांटिटीज आर गिवन इन द CGS यूनिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द गिवन क्वांटिटीज, एंड देन वी हैव टू सेलेक्ट the suitable formula, and then substitute
simplify and then find the answer. तो given quantities v टर्मिनल वेलोसिटी दिया हुआ है और वो है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटा भी दिया हुआ है और एटा की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4 पॉइस. और सिग्मा मतलब डेंसिटी ऑफ द ड्रॉप ऑफ द आयल इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी दिया हुआ है. और डेंसिटी ऑफ द एयर मतलब विस्कस मीडियम जिससे आयल ड्रॉप गिर रहा है, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दिया हुआ है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यू नो दैट द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने डिराइव किया था. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटा इज इक्वल टू 2/9 इंटू आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन वी. यहाँ हमें फाइंड करना है आर, रेडियस ऑफ द ड्रॉप. तो इसलिए आर को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दिस विल बी 9 एटा इंटू वी इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी. तो देयरफॉर आर स्क्वायर हो जाएगा 9 एटा वी अपॉन 2 रो माइनस सिग्मा इंटू जी. आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गया. तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 9 एटा वी अपॉन 2 इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी. अब इसमें गिवन क्वांटिटीज़ जो है वो ये सारी गिवन क्वांटिटीज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे विदाउट कन्वर्जन ऑफ यूनिट बिकॉज ऑल आर गिवन इन द CGS. तो देयरफॉर यू कैन राइट R इज इक्वल टू अंडर रूट 9 इंटू एटा और एटा की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4 और इंटू वी की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 2 और रो की वैल्यू है 1 माइनस सिग्मा दैट इज 0.9 इंटू जी दैट इज 980. तो देयरफॉर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द रिजल्ट 0.574 और CGS यूनिट होगा रेडियस का सेंटीमीटर. तो दिस इज योर आंसर एंड नेक्स्ट कंटेंट ऑफ दिस टॉपिक विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर.